अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशआबाद होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जी पढ़ने जा रहे हैं एक नया यूनिट नंबर 1 और इसका है अ शॉट इन अ डार्क। इसका ये यूनिट का नाम है। तो चलिए अब इसकी आज एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है जी, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर ए है कॉम्प्रीहेंशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट पोजीशन डज फिलिप स्लिदर बाय होप टू गेट। ठीक है जी, तो इसका मैं आपको आंसर शो कर देती हूँ। ये है जी इसका आंसर, ये देख लीजिए आप लोग भी। Pip Slitherbye wants to have some kind of nomination in the parliament. B part पे आते हैं। Who is Philip Slitherbye on his way to visit? Why? इसका जी ये है जी आंसर। Pip Slitherbye on his way to visit Mr. Salpin Jago. She is a constable. She approves him and support him. He can easily attain his ambition. C part पे है। How does Barty know that Philip Slitherbye is going to visit Barty mother? ये है जिसका आंसर। Barty hears the conversation of Slitherbye when he was talking to the club acquaintance through the train window. ठीक हो गया जी। अब आते हैं डी पार्ट पर। वेयर इज बार्टी गोइंग? बार्टी कहाँ जा रहा था? बार्टी इज गोइंग टू फिशिंग इन अ लिटिल कंट्री इन नियर बॉर्नक्यू फॉर 3 days। उसके बाद आ जाते हैं ई पार्ट पे। व्हाट आर द 6 आइटम बार्टी हैज इन हिज पॉकेट? 6 वो कौन से आइटम थे जो बार्टी की पॉकेट में थे? The 6 items Barty has in his pocket are matchbox, pencil case, railway tickets, car cigarette case, and 6 penny coins and key. उसके बाद आते हैं जी F part पे। What has Barty forgotten and what does he want Philip Slitherbye to do? इसका जी आंसर ये है। He has gotten his coin pure, purse and family crest. He wants Slitherbye to lend him 2 to 3 pounds so that he could manage his trip. ठीक हो गया जी। अब आते हैं जी पार्ट पे। What are the 2 reasons why Philip Slitherbye does not help Barty? वो क्यों नहीं हेल्प कर पाया था? तो जिसका आंसर ये है। Philip Slitherbye does not help Barty because when Barty answered about his family crusts, Slitherbye does not believe him. उसने यकीन नहीं किया। Barty says her mother resembles him, but Slitherbye has indifferent hairs. There are the misunderstandings that urged Slitherbye not to help Barty. कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं जी एच पार्ट पर। Who is the other man traveling to Brill Manor and what are the 3 things we learn about him? वो कौन था जो ट्रैवल कर रहा था बिल मैनर, और हमने उसके बारे में 3 थी क्या पढ़ी थी? The other man traveling to Bill Manor is cloud people. The other things we learn about him are he's an important lawyer. He travel on same train. He talks a lot. वो बहुत बातूनी था। आई पार्ट है। Which part or parts of the story shows us that Philip Slitherbye thinks highly of himself? क्या बातें पता चली कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है? तो जिसका आंसर ये है। Philip Slitherbye thinks highly of himself when he imagines impressing others with his story. जे पार्ट है। Which parts of the story shows us that it was written and is set in the past? तो ये है जिसका आंसर। System of the same statues, crust, letter writing and guide shows that the story is written and set in the
अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पर। आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू कंटेंट। ए है Philip Slatterbach settled him down in an almost empty railway carriage with a pleasant feeling of starting off on an egregious and profitable trip. Explain which word best describe how this character is feeling. इन वर्ड्स में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो उसके करेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से बता रहा है? इरिटेटेड, स्मग या फिर एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड नहीं हो सकता, स्मग होगा, क्योंकि स्मग का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड। उसके बाद आ जाएगा हाउ डज ही फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी। उसने अपने आप को कैसा फील किया स्टोरी के आखिर में? ही फील शॉक्ड, अनवेल एंड इरिटेटेड। थर्ड है हाउ डज ही होप टू प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रिप। उसने कैसे सोच लिया कि वो इस ट्रिप से प्रॉफिट होगा, उसको फायदा होगा? ही होप टू शो द अप्रूवल ऑफ मिस्टर सॉल्ट पेन जग्गू। उसके बाद आ जाते हैं बी पार्ट पर। देयर वॉज अ थिंग ऑफ कोल्डनेस इन हिज वॉइस। वट डज द स्टेटमेंट मीन्स। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? अनफ्रेंडलेस, ठीक है। हु इज बीइंग डिस्क्राइब्ड हर? स्लेदर बाय, ठीक है। तो ये मतलब देखिए कितने छोटे छोटे से आंसर है ना। वाई डज ही फील एज ही डज नॉट डज। स्लेदर बाय बिलीव्स दैट बार्टी लाइड टू हिम। उसने सोचा कि बार्टी मुझे झूठ बोल रहा है। अब आ जाते हैं सी पार्ट पे। द ट्रेन मूव्ड ऑन लिविंग द इन द सो कॉल्ड son of the Saltpan Jaggu family cursing furiously on the platform. Whose perspective is being expressed here? वो कौन है जो ज्यादातर इस तरह एक्सप्लेन किया गया है? Salter by. What is meant by so called? Salter by does not believe that he is Mr. Saltpan Jaggu son, and so he called him so called. ठीक है जी, so called son. वो ये यकीन नहीं करता था कि मैं सॉल्ट पेन जग्गू का बेटा हूँ, ठीक है। वाई इज बार्टी कर्सिंग फ्यूरियसली? बिकॉज स्लेदरबाय डज नॉट गिव हिम मनी, क्योंकि वो स्लेदरबाय उसको पैसे नहीं दे रहा था। अब आ जाते हैं बी पार्ट पर, बी पोर्शन पर, वर्किंग विथ वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ यू गो थ्रू द पैसेज केयरफुली। अगर आप उस पैसेज को केयरफुली पढ़ें, यू विल फाइंड ऑल द एडवर्ब्स बिलो। आप उसके अंदर एडवर्ब्स देखेंगे। फाइंड देम इन अ पैसेज एंड नोट द वे इन विच दे आर यूज्ड। और उनको पैसेज में से ढूंढें और उनको लिखें। विच वर्ड डू दे डिस्क्राइब? उन्होंने कौन से वर्ब को डिस्क्राइब करा हुआ है? व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द वर्ब गिवन बिलो, यूज देम इन सेंटेंस ऑन योर ओन। स्टडली, ELY, ठीक है। promptly, ruefully, rightly, noisily, carelessly, inefficiently, presently, furiously, securely, hastily और severely। ये वो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी कॉपी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इनको कॉपी करना है। He was searching furiously and inefficiently from some elusive or inextended objects. From the time to time, he drags a 6-penny coins out of the waistcoat pocket and stared at it ruefully, then recommended the futile searching operation. Sakib vocabulary built a very detailed image of the young man, movement and character. अब ये आपको मैंने सुना दिया, ठीक है। अब पार्ट नंबर ए है इसका। अंडरलाइन द 4 वर्ब्स इन द सेंटेंस। एक सेंटेंस में 4 वर्ड्स यूज किए गए हैं, वर्ब्स, ठीक है, और आपने उनको अंडरलाइन किया आना है। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। जो पहला है वो एक डन कर दिया गया है आपके लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग चलाओ। तो जी आगे आप, मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ समझ आ तो गया होगा। तो कुछ तो आप कर ही देंगे। वर्ब्स को तो पता है ना, किसी भी एक्शन के नाम को वर्ब, किसी भी एक्शन को वर्ब कहते हैं। बी पार्ट पे आ जाते हैं, चलें। द स्टोरी कंटेन मैनी वर्ड्स टू डू विथ लुकिंग। Here is the list of these and a couple that do not appear in the story. Use them in the sentence of your own. यानी कि ये वो वर्ड्स हैं, इनको आपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। मैं आपको सेंटेंसेस शो करती हूँ, ये देखिए।
तो जी इसका सेंटेंस बनेगा जी, ही परफॉर्म्स विथ केयरफुली scrutinized by her employer. फिर है spied. The police spied the people and caught the suspected one at last. या आप ये वाले भी लिख लें, आप कोई से भी लिख सकते हैं, इसमें आपकी मर्जी है. Picked out सेंटेंसेस आप कोई से भी लिख लेना, ठीक है जी. Picked out है जी, the teacher finally picked out the student whose handwriting was excellent. Searched out, we searched for the mouse in each and every corner of house. ठीक है जी. Spotted, the police at last spotted the thief hidden in the garden. Fixed eyes on, she fixed her eyes on me for a long time. Glanced, she glanced up his face, but it gave no clue of his mood. Observed, teacher observed all things in the class. Stared, she stared up of his face, but he ignored her. ठीक हो गया जी. उसके बाद आ जाते हैं सी पार्ट पे. लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी. पहला पैराग्राफ को देखते हैं स्टोरी के. फाइंड वर्ड्स एंड फ्राज दैट डिस्क्राइब फिलिप स्लेदर बाय फीलिंग एंड कंटेमिनेटेड. तो वो हैं जी, प्लीजेंट फीलिंग, एग्रीबल, ग्रेटिफाइड और डिलाइटेड. ये वो 4 वर्ड्स हैं जो उसकी कुछ फीलिंग को बता रहे हैं. कंटेमिनेटेड होता है पुरअतमाद होना, ठीक है. उसके बाद है यूज अ थ्रेशर टू फाइंड मोर वर्ड्स दैट मीन टू सेम एट द प्लीज. प्लीज का होता है खुश होना, सेटिस्फाइड हो सकता है, हैप्पी हो सकता है, कंटेंटेड हो सकता है, ठीक हो गया जी. स्लैंग एंड कॉलिक्यूमुलस. स्लैंग का होता है बदतमीज होना, और इसका मतलब होता है तमीज के दायरे में रह के आम बोलचाल, ठीक है हो गया. तो चलिए अब ये जो पैराग्राफ है इसको पढ़ना है आपने, और फिर इसके अंदर से अगर ये वाला जितना भी पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, ठीक है, इसको पढ़ के अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ ना आ रही हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी. अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पर. कैन यू यूज द फॉलोइंग इन 2 ways टू ब्रिंग आउट देयर डिफरेंट मीनिंग. क्या आप इनको 2 तरह से यूज कर सकते हैं ताकि इनका दूसरा कोई और किसी और तरह का मीनिंग बन जाए, ठीक हो गया. तो देखिए, हॉरिबली, फेयरफुली बैड कंडीशन, ट्रेडिबली, एक्सट्रीमली बैड या फिर डिफिकल्ट, फ्राइटफुली, एक्सट्रीम या फिर टेरिफाइंग, और इसका प्रिटी का होता है ब्यूटीफुल या फिर क्लेवर. सी है जी लर्न अबाउट लैंग्वेज. तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द सेंटेंस इन ए एंड बी. ए है, हाउ वुड दे फील ही वॉन्डर्ड. तो उसको वो कह रहे हैं कि हाउ डू दे फील ही वॉन्डर्ड. उसने कहा कि वो कैसे फील करते हैं. हाउ दे कुड फील ही वॉन्डर्ड, यानी कि जब आप ये वाला और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जब आप बी पार्ट, ठीक है, जब आप ये वाली स्टोरी अच्छी तरह से खुद समझ के पढ़ लेंगे ना तो आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आप इसका आंसर लिख सकें, ठीक हो गया. तो उससे पहले अगला शुरू कराने से पहले मैं आपको कुछ स्लैंग और इसका कॉलिक्यूलिज्म का डिफरेंस लिखवा देती हूँ. ये अक्सर आ भी जाएगा तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है. स्लैंग इज द यूज ऑफ इनफॉर्मल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, दे आर नॉट कंसिडर्ड स्टैंडर्ड इन लैंग्वेज, ठीक हो गया जी. Colloquialism is the use of expression in which certain words are used in the way that does not correspond to the real meaning. For example, it is awfully, luckily, coordinates, truck, lorry, scroll या फिर फुटबॉल, ठीक हो गया. उसके बाद जी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को देखिए. I ought to be in my pocket, said Barty. I ought to let. Ought is usually followed to be to by a to infinite, ठीक है. For example, ought to go, ought to eat, ought to see, etc. ठीक हो गया जी. In the negative ought, the is followed by not and can be shortened by ought not.
यानी कि वो कह रहे हैं कि अब यहाँ पे उनके कहने का मतलब ये है कि जो हम ऑट के साथ अगर नॉट लगाएंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इधर इसके यानी कि इसके मीनिंग्स को देखते हैं कि ये कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और साथ साथ ये भी देखते हैं कि सिर्फ इसका ऑट का मतलब सिर्फ एक चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता, इसका सिर्फ एक मतलब नहीं है, इसके डिफरेंट मतलब होते हैं। इंग्लिश में जो भी वर्ड्स होते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, मीनिंग काफ़ी ज़्यादा, एक वर्ड के काफ़ी ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, अब ऑट टू एक्सप्रेस 3 थिंग्स, और 3 चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। ड्यूटी और मॉरल एप्लीकेशन, किसी भी ड्यूटी को। ठीक है, वी ऑट टू हेल्प दोज पीपल हु आर ओल्ड और एंड सिक, हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो बीमार होते हैं, जब वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े होते हैं। द मिनिस्टर फेल्ट दे ऑट टू गो देयर कुलीग फरनल, उसके बाद है प्रोबेबिलिटी और सपोजिशन, किसी भी चीज़ को सपोज करना, उसके लिए भी ऑट का वर्ड यूज़ करेंगे। ही लेफ्ट लाहौर yesterday so he ought to be here tomorrow, उसने कल लाहौर से वो चले गया था, शायद वो ये कल यहाँ पर हो। एडविजिबिलिटी और डिज़ायरेबिलिटी, ठीक है, यू ought to buy new cars for your car, new tires for your car, you may have an accident, तुम्हें क्या, किसी को एडवाइस करना। ठीक है, अब इसके एक और जगह पर ये हो गया कि तीसरा यूज़ क्या हो गया कि किसी जगह किसी को एडवाइस कर देना, तुम्हें एक नए टायर्स बाय करने चाहिए अपनी कार के, क्योंकि अगर तुम नहीं बाय करोगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। अब ये देखिए, मेक सेंटेंस इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग। ऑट टू फील, पार्ट ए है ऑट टू फील। वी ought to feel happy about the result, फिर है ought to go, I ought to go and visit my friend। ought to write, you ought to write the letter to your friend। फिर है ought to have been, you ought to have been doing your homework। ought to hear, young children ought not to, अब ये देखिए ought not है ना तो साथ आ गया, तो ये देखिए यहाँ पे भी, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए इस्तेमाल किया है। यू यंग चिल्ड्रंस ought not to hear abuse language, ought he to go there, ought to know, you ought to know about the consequences of your actions। ought to play, children ought not to play, ये देखिए यहाँ पे not आ गया ना तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए इस्तेमाल हुआ। children ought not to play in the park after dark, यानी कि रात को चिल्ड्रंस को बाहर नहीं खेलना चाहिए। और दे टू रिटर्न, और दे रिटर्न टू द हॉल, ठीक हो गया जी। अब आते हैं एलिप्सिस पर। एलिप्सिस बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर सो सिंपल सी बात की गई है। इन इंग्लिश वी ऑफन लिव आउट वर्ड्स स्पेशली इन कन्वर्सेशन, यानी कि वो कह रहे हैं कि इंग्लिश के अंदर हम कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम छोड़ जाते हैं कन्वर्सेशन के, मतलब कि आपस में बातचीत के वक्त कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम छोड़ देते हैं, उन्हें बोलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके बगैर भी हमारा मीनिंग पूरा हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बेबी वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, बच्चा दूध पी रहा है। द मदर टी, और माँ चाय पी रही है। यहाँ पे चाहते तो हम एंड, ये देखिए यहाँ पे एंड मिसिंग है लेकिन उसकी जगह कोमा लगाया हुआ है। अब इधर से हम लोगों को सेंटेंस पढ़ते ही हमें सेंस हुई कि जी यहाँ पे कहा गया है कि जो बेबी है, छोटा बच्चा है, वो मिल्क पीता है और माँ टी पीती है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से करके सारा है। आपको मैंने कॉन्सेप्ट देना था, कॉन्सेप्ट दे दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फाइंड द मिस्टेक इन द फॉलोइंग एंड करेक्ट दैम, मिस्टेक्स निकालनी है हमने। पार्ट ए है I am going to the market but am I not, ये देखिए यहाँ पे I लिखा हुआ है लेकिन साथ इसका कुछ नहीं है तो इधर आएगा is। ठीक है, अम्मी I is not। ठीक है, you are working hard but not your friend, but not के बाद जो आएगा not को जी काट दें और इसकी जगह लिखें is not। ठीक है, Sarah is having roasted chicken but the other vegetable curry, अब यहाँ पे others के बाद आएगा are having और but को काट दें। ठीक हो गया। Drawing and writing are good skill to learn but scribbling is not so good, is आएगा यहाँ पर। ठीक है, Multan has been marked on the map but Rawalpindi, Karachi and Abbottabad
लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट, अब इसकी जगह इधर लेफ्ट के पीछे लिखते हैं हैव बीन। ठीक हो गया जी। फिर आ जाते हैं फाइंड 3 एग्जाम्पल ऑफ इलिप्सिस इन द स्टोरी। 3 एग्जाम्पल लिखनी है इलिप्सिस की स्टोरी में से ढूंढ के। तो ये आपका होम टास्क है। अब आते हैं डी पार्ट पर, लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर। तो इसके अंदर आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में है वर्क इन पेयर्स एंड रीड द फॉलोइंग conversation, provide your own short answer or comment in the blank. It's going to be a long hot summer. मेरे ख्याल से ये काफ़ी लंबे गर्मियाँ, काफ़ी जो गर्मियों का टाइम पीरियड होगा वो काफ़ी लंबा होगा। येस इट विल बी, तो इसका आंसर बी में आएगा। मतलब कि आपने कन्वर्सेशन करनी है, ठीक है, आपस में बातचीत करनी है, उसको कंप्लीट करना है। येस इट विल बी। आई एम गोइंग टू ट्राई एंड गोइंग अप टू द हिल्स। मैं जा रही हूँ हिल्स के ऊपर ट्राई करने के लिए। सो यू आर, हाँ तो भी करना चाहिए। आई हैव बीन टू इस्लामाबाद एंड टू मरी बट नेवर टू नथिया गली। मैं इस्लामाबाद और मरी तो गई हूँ लेकिन नथिया गली नहीं गई। नॉर आई हैव आई डिड नॉट डिड आई डिड लव टू गो देयर सम डे। हैव आई, ठीक है हो गया। सो वर्ल्ड, I have heard that the wonderful place for the holiday. So have I? I read an article about in the paper last week. Yes, me too. It was a wonderful article, but with photograph. Yes, it was. I enjoyed reading it, and I am going forward to seeing the place. ये देखिए सारी कन्वर्सेशन हो रही है, आपस में बातचीत हो रही है। फिर so am I it might be a good idea to plan a trip there together someday. It certainly might be. Let's do it. ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, when you have finished adding comments, read out the statement as a dialogue. Check your रिस्पॉन्स एज आर करेक्ट। आपने जिस टाइम सारी कन्वर्सेशन लिख ली तो आपने अपनी स्टेटमेंट्स चेक करनी है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये है कंपोजिशन, इसके अंदर है जी अफिलिस बाय ऑर्बिटर राइट अ लेटर टू हर फ्रेंड। लेटर लिखना है, मैं आपको लेटर लिखते दिखा देती हूँ। लेटर मैंने लिख लिया था, तो ये देखिए ये है वो जी लेटर जो आपको इस तरह कहा गया है। ये पैटर्न है लेटर लिखने का। एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, फिर डेट लिखेंगे। डेट कोई सी भी लिखने, मैंने काफ़ी पुरानी है कॉपी तो मैंने पुरानी ही होगा। आप जब आप जो सी डेट को लिखेंगे वो वाली डेट डालेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप आज की लिखेंगे ना, आज लेटर लिखेंगे तो आपने आज की डेट डालनी है। फिर इधर लिखेंगे, इधर से इधर लिखेंगे डियर फ्रेंड, और आई रिसीव्ड योर लेटर इन अ गुड हेल्थ बट नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। आई एम वेरी upset about something that happened last week. I plan to spend weekend with Mr. Salpin Jagu secure her approval for the nomination as the member of parliament. On the train, I meet a young man who claimed that he was the son of Mr. Salpin Jagu. He asked me to lend him some money because he had left his coin purse at the hotel. I was willing to do some, but because of some misunderstanding, I thought he was lying. When we reached at the residence of Mr. Salpin Jagu, यानी कि ये सारा लेटर है, ठीक है। I confirmed that the young man was telling truth, and I realized when the terrible mistake I have made. Now I doubt that Mr. Salpin Jagu will not support my nomination. I am very embarrassed and upset about it. Yours truthfully, ठीक हो गया, और फिलिप स्लिदरबाई। तो ये है वो लेटर का पैटर्न। ये दोबारा आप लोग देख लीजिए, मैंने आपको एक बार सारा फिर भी पढ़ के दिखा दिया था। ये लीजिए, आप चाहें तो ये वाला भी लिख लें, इसमें भी कोई ऐसी वैसी मिस्टेक नहीं है, मैंने खुद चेक कर लिया था एक मरतबा, ठीक है जी। ये लीजिए, ओके जी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर आने वाली अपडेट आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। तो दी दीजिए मुझे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।